I expect it to be a very good film, a good story, well performed. The cast seems to be really solid and very experienced and very sound in their craft. So I expect it to be overall a film made a good quality film with a touching story and possibly something that I can take home with me and think about and learn something from it. Unfortunately, I don't know him very well personally, and I would like to know. He is definitely somebody who has had a major influence in my life. He may not know this. In 1998, when his movie Satya came out, and it was a breakout movie for him because he had been working before that, but he was transformed into a star, and he gave people like me hope. And before that, I used to look myself in the mirror and say, like, no, man, you cannot be an actor. There's like, your actors like you will not get work. But he gave us hope because he showed that if you are true to your craft, if you keep doing what you're doing, if you keep believing in yourself, you will achieve something that's worthwhile. So I really respect him and I really thank him for being himself and laying the foundation. A lot of actors like myself, I cannot speak for other people, but I would also say like myself, Raj, so many other people, even Irfan for that matter, who is a great actor. But I think if Manoj ji didn't find success with Satya and the subsequent films, a lot of us wouldn't be working. So I really credit my career uh, to what he did and the inspiration and the hope that he gave me. Before you come on this specific, what do you heard about the group movie? What you heard? How much you watch that film? I heard very positive things. See, one thing is for sure that he's a powerhouse performer. He's never bad. He'll always give you something new. And if you see Aligarh, if you see all the films that he's done recently, and he's experimented, he's shown his versatility as an actor as to what he can really do. So I would expect something like that. A very good, top-notch, top-quality performance from one of the best actors in our country. That's what I expect. And the word of mouth has been really positive. People are saying that it's a very good movie. I didn't want to know too much about the movie because it spoils the fun. You want to come and experience what the movie is about. So I know that it's going to be emotional. That much I know that it's going to be emotional. Hopefully, I won't cry and embarrass myself. I do that sometimes. And I get very conscious because people are sitting around. Yeah, so hopefully I won't. But it's good. It's good because that's what cinema is about. It makes you feel things. It gives you something. It gives you hope. It gives you joy. It gives you inspiration. It teaches you something, or it makes you unlearn something. So that's the prominence of cinema in our life, and it's a stress relief also. I mean, we need those kinds of movies as well. So, cheers. थोड़ा that's it. Roll. So कम समय रह गया रिलीज को बहुत ही नर्वस और एक्साइटेड. एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है क्योंकि नर्वस शूट के टाइम पे फील करते थे कि कैसे कैरेक्टर परफॉर्म करेंगे, क्या होगा सेट पे और उसका ग्राफ अच्छे से मेंटेन करना. लेकिन आज बहुत एक्साइटेड है क्योंकि रिव्यूज़ कल से बहुत प्यारे फिल्म के आ रहे हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है. और दूसरी चीज़ ऐसी होती है कि आर्टिस्ट को जब ऑडियंस के सामने जब फिल्म जाती है तो उनके रिएक्शन लाइव देखना बहुत ही अच्छा लगता है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि सारे लोगों के चेहरे और उनके रिएक्शन देखना. आप आई थिंक मेरी जो सेंटिमेंट्स है वो स्मिता जी से एको करती है. क्योंकि जो मेहनत करने वाला टाइम है और जो हमारे कंट्रोल में चीज़ें होती है उसका टाइम तो ख़त्म हो चुका है. वो आपका शूट का टाइम होता है. तो अभी बस यही है कि माहौल है बहुत पॉजिटिविटी का. क्रिटिक्स सब इतना अच्छा लिखे हैं इसके बारे में, तो बस देखते हैं कल क्या होता है. so how the क्या बोलते हैं appreciation is coming from your family
और योर फ्रेंड्स, किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से? फ्रेंड्स एंड फैमिली तो अभी तक देखे नहीं, आज देखेंगे। ओके ओके तो आज स्क्रीनिंग के बाद आप उनसे पूछेगा ज़रूर। ओके। लेकिन पर स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद लोगों के बहुत बढ़िया रिएक्शन आए थे और वो हमारी फिल्म का पहला स्क्रीनिंग था। रफ कट जब हमने देखा था तो अपने घर घर में फिल्म रहती है ना, जब स्पेशल स्क्रीनिंग में कोई थर्ड पर्सन है जो फिल्म देखेगा उसके बाद रिव्यूज़ देगा तो उस टाइम पे थोड़ा हो रहा था, लेकिन स्पेशल स्क्रीनिंग में जो रिस्पांस आया, जिस तरीके से अप्रिसिएशन मिला और कल से फिर रिव्यूज़, तो आज एक कॉन्फिडेंस है कि वी आर रेडी टू फेस ऑडियंस। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज वाजपेयी की बात करें तो हम उन्हें कह सकते हैं कि वो मेथड एक्टर हैं। मनोज वाजपेयी तो इंस्टीट्यूशन है, वो इंसान नहीं है। वो मतलब मेथड भी उनका एक मेथड होता है ना लोगों का, उनके पास पता नहीं कितने मेथड है करने के। तो वो तो कोई अलग लेवल के आर्टिस्ट है। और मनोज सर और स्मिता जी और कुमू जी, इन सब के साथ काम करना इतना इंस्पिरेशनल था मेरे लिए फिल्म में। और इन सब की यही खासियत, मैं यही कहूँगा बार बार के इतने डेडिकेशन के साथ ये आज भी काम करते हैं। हर फिल्म को एक नई फिल्म जैसे, पहली फिल्म जैसे ट्रीट करते हैं। और बस इतना मन लगा के काम करते हैं कि मज़ा आ जाता है साथ में काम करना। फादर और एक सन की स्टोरी है इसमें, तो कभी भी ऐसा महसूस हुआ आपको, कभी महसूस हुई अपने फादर की तो मुझे हमेशा कमी महसूस होती है, क्योंकि मेरे फादर जो हैं बैंक में काम करते हैं। तो ट्रांसफरेबल जॉब है उनका। तो वैसे ही कुछ कहानी है कि वो हमेशा दूर ही रहते हैं और मतलब मैं अपनी मम्मी के साथ रहता हूँ प्राइमरीली। तो वो हर 1-1.5 महीने में आते हैं और जब भी आते हैं मेरा पहला सवाल उनसे ये होता है कि अब मेरे लिए क्या लाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you so थैंक यू। सो मनोज सर, मतलब अब ये कहना तो एकदम ही गलत होगा कि कितने नर्वस है, कितने एक्साइटेड, बहुत टाइम हो गया इंडस्ट्री में। आज भी ये एक वैसा फील होता है जब भी पिक्चर रिलीज से एक दिन पहले? देखिए, एक उत्साह और एक उत्तेजना तो रहती है हमेशा कि जब भी आपकी कोई फिल्म आ रही होती है। नर्वसनेस मुझे शुरुआत के दिनों में भी नहीं होती थी। ओके। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि जो भी फिल्म आपकी आ रही है, अगर आप उससे खुश नहीं हैं, तो अगर कोई दूसरा खुश है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर आप उससे खुश हैं तो कोई दूसरा खुश है नहीं है तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरे लिए हमेशा से जो है ये रहा है कि मैं मेरा जो अपना चुनाव है वो बहुत मायने रखता है। जी। डायरेक्टर की बात करें, उनकी तो पहली मूवी, तो उनके डायरेक्टिंग से संतुष्ट हुए आप? मतलब अमेजिंग। मैं उनके साथ अगली बार फिर से काम करना चाहूँगा। ओके जी। सो लास्ट सवाल है आपसे, जैसे हॉलीवुड की बात करें या बॉलीवुड की, हॉलीवुड में रिसेंटली एक हैरेसमेंट हुआ है, सेक्शुअल हैरेसमेंट, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने भी ट्वीट किया है कि ये सब बॉलीवुड में भी होता है, इरफान खान ने भी कहा है। तो क्या लगता है बॉलीवुड में ये एग्जिस्ट करता है सेक्शुअल मुझे हैरेसमेंट? पता नहीं, मुझे पता नहीं। मतलब मेरा तो हैरेसमेंट नहीं हुआ अभी तक। अगर होता है तो गलत है। ओके। जी। और जो नेशनल एंथम पे जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट लिया है, जो फैसला लिया है नेशनल एंथम पे, राष्ट्रगान पे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक जी और हिंदुस्तान की सरकार, जो भी सरकार आती है जी और जो भी मतलब कानून बनाती है, मैं उसके साथ जाने को तैयार हूँ। अगर वो कहती है कि नेशनल एंथम पे खड़े होइए तो हम खड़े हो जाएंगे। अगर वो कहती है कि नहीं खड़े होइए तो नहीं खड़े होंगे। मतलब मैं इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी सर। जी। बिकॉज क्या है कि अगर हमने इन द सेंस कि आई हैव चोजन अ गवर्नमेंट एंड आई हैव टू बी अबाइड बाय देयर पॉलिसीज, दैट्स इट। राइट। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू।